Okay. So first we'll start with leasing and capital expenditure, and then we'll start with amortization of loans. So leasing, we all know that it is basically whenever we are going to purchase any kind of asset, we are always have two kind of options. Either we can directly purchase it, okay, by paying the wholesome amount, or we can also take it on lease by paying, the constant rent. It could be per month, per quarter, per, semi-annual, or it could be the yearly basis. So every time whenever a company or a person who wants to acquire an asset, they always have these two kind of options. Okay, and in this particular thing we are going to evaluate that how we can actually calculate the value of lease, and we can compare it with the purchase price, and if the value of lease is greater than the purchase price, then the company should purchase it, right? This is a prudent decision because definitely the purchase price is now less than the value of lease, or R is basically the value of rent which we are going to pay at regular intervals of time. So we'll compare it. Similarly, if rent, that the value of lease, value of rent is less than the purchase price, then the company should lease the machine. Okay. So purchase price mein we don't have to calculate anything. We have been directly given the purchase amount because this is at today's date. But for leasing, since it requires the regular payment, at regular intervals, so for that it will actually take the form of annuity, and we know how we can calculate the present value of annuity. Okay, so it's very, very simple. Although we have also discussed some questions regarding that, but today we are discussing, the topic wise allocation of the questions. So suppose you have this particular question. A company may obtain a particular machine either by leasing it for 5 years at an annual rent of rupees 1200, or by purchasing the machine for rupees 4500. Okay, so they have these two options. Which alternative is preferable if the company can borrow the money at 10% per annum? Okay, so we have the discount rate, we have the annuity amount, that is 1200, and the frequency is yearly, it's annual, and we also have the number of years. So we can use the direct ordinary annuity formula because the payments usually, whenever it is not being mentioned that the payments are being made at the beginning or at the end, as a normal assumption we assume that the payments are being made at the end of the period. Okay, so we'll be using the ordinary annuity formula. So calculate the values. So we have been given all the information. So annuity is 1200, N is 5, R is 10%. And calculate the value of rent or lease. Now since we are calculating the present value, so what we'll do, we'll multiply 1200 with, now the table will be used PVAF tables. Annuity है ना, तो PVAF tables. Interest is 10%, year is 5. Okay, now see the table. So 10%. So first we'll go to the present value annuity factors. Okay, this is the table. This is 10% for 5 years. So this is the value. So this is the value of lease. In the question, the purchase price is 4500. So tell me which option is preferable? Purchase price. To Purchase purchase price. it. Yes, ma'am.
So it's better for the company to directly purchase it because the value of lease is coming to be higher. Easy, eh? Now the next part is, what if the cost of borrowing is 14% per annum? So this is also very easy. We know that now the discount rate we have to change from 10% to 14%. So simply we'll just change it. So it is 14% now. And similarly, we will look for PVAF table with 14% interest. Same number of years are same. Okay. Now look for the value. So this is 14% for 5 years. Okay. So now this is the table value. We will simply multiply 1200 with this. Now tell me which option is better. Lease. Lease. It is just for 4,119.72. So this time the value of lease is better. So you'll get a direct question. Now you can understand also that in your exam any question can come up. You just have to understand the concepts of present value, future value. Okay, that at what particular point of time you have to calculate the present value and when you have to calculate the future value. Also you have to ascertain which type of the we have discussed the 5 types of annuity, so which particular type will be applicable in order to use the formula. Okay, we have formula for 5 type of annuities, right? So usually whenever the question is silent, we will assume as to be ordinary annuity, the simple annuity where the payments are being made at the end of the period. Okay, the next one is the capital expenditure. So capital expenditure is basically whenever the companies say they have to invest in a particular machine for in order to manufacture any particular good. Now they have been exposed to number of machines. Okay, there is machine A, machine B, machine C, and they have to evaluate which one is better. Okay, so which one is better, how they can evaluate? They can actually ascertain what is the annual savings the machines are actually, doing in the period. So it will always be given in the question that machine A is leading to that particular savings, machine B is leading to that particular savings, and the number of years will also be given. Okay, say machine A will provide a saving of rupees 5,000 for 5 years, machine B will provide a saving of 6,000 for 8 years, something like that. It will always be given. Similarly, if these informations are given and you know that these are the annual savings which are going to repeat in every period, we will again use the concept of annuity. क्योंकि एनुअल सेविंग से 5,000 रुपीज जो वो सेव कर रहे हैं वो हर पीरियड में सेव कर रहे हैं, तो इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ द एनुइटी. ठीक है, एनुइटी हमेशा अपने कंसेप्ट अपने दिमाग में ऐसा रखना है कि इट इज ऑफ सेम अमाउंट विच इज गोइंग टू रिपीट इन एवरी पीरियड. ठीक है, सो हमारे पास सेविंग्स भी है, हमारे पास नंबर ऑफ इयर्स है, हमारे पास रेट ऑफ डिस्काउंट भी होगा क्वेश्चन में. उससे हम क्या निकाल लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स. ओके, बट इन दिस पर्टिकुलर केस हाँ हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बिकॉज हम आज की डेट पे वी हैव टू मेक अ डिसीजन. और जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है दिस इज गिवन फॉर द फ्यूचर कि अगले 10 सालों में इतना सेव होगा हर ईयर में. ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. सो हम प्रेजेंट वैल्यू सेविंग्स की निकाल लेंगे और उसी के साथ साथ हमें कॉस्ट भी गिवन होगी, क्योंकि खाली सेविंग से हम लोग नहीं करेंगे. माइट भी किसी की एक्विजिशन कॉस्ट, किसी की परचेज कॉस्ट बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो उस केस में तो हम खाली एनुअल सेविंग्स के बेसिस पे नहीं कर सकते ना. सो हम क्या करेंगे? हम नेट एनुअल सेविंग्स लेंगे अपनी. नेट मीन्स we will calculate the present value of savings, then we'll subtract the cost of the machine from it, और जो भी वो नेट होगा उसके अकॉर्डिंगली we will compare. अगर net present value of the annual savings of machine A is greater than machine B, then definitely the company should opt for machine A. If the present value of net savings is for machine A is less than machine B, then definitely company should go for machine B. So it's very simple. Okay, we now just have to use the formula
in respect of making a decision that which particular machine is, is more beneficial for the company. So suppose this is the question we have. Machine A costing is given, life is given. Machine B की भी cost given है, life given है, and हमें by machine हम लोगों को annual labor saving is also given. ठीक है कि कौन कितना सेव करेगा. डेफिनेटली मशीन है तो इट विल डू सम सेविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेबर कॉस्ट. लेबर रिड्यूस हो जाती है जब मशीन्स आ जाती हैं. सो अज्यूमिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज 10% per annum, find which machine is preferable. Okay, so we'll calculate the net savings for each of these machines. Okay, so first let's calculate for machine A. Okay, so cost is given 10,000, n is given 8. R दोनों के केस में 10% है, और जो एनुअल सेविंग्स हैं, जो एन्युटी का फॉर्म ले रही हैं, जो हर साल सेम आ रही हैं, वो मशीन ए की कितनी है? 2000. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल सेविंग्स. वो हमें पता है कैसे करना है. एन्युटी 2000 मल्टीप्लाई बाय PVAF. Rate of interest is 10% and number of years is 8. Okay, similarly we will calculate for machine B. Okay, so for machine B, cost is 8,000. इसकी useful life है 6 years. Rate of interest is same. Annual savings is 1800. So इसका formula क्या होगा? 1800 PVAF tables 10% for now 6 years. So हमने सारी information लिख ली अपनी. Now we'll check the tables, the same PVAF tables. So first is 10% for 8 years. So 10% for 8 years. So this is the value. We'll just multiply this value. So for machine A, this is the savings. This is the present value of the savings. जो फायदा करेगी कंपनी को वो ये है. For machine B, it is 10% for 6 years. So this is the value. Okay, so it will be 1800 into this. So इसके केस में it is 7,839. Now you have to calculate what? Net savings, because we are actually comparing the net savings, not just the savings, because we have to account for the cost as well. So this is basically present value of savings minus the cost. So machine A actual में net savings दे रहा है 670 rupees की. Similarly for machine B, it is savings minus cost. So ये actual में हमें loss दे रही है. मतलब इसका purchase cost ज्यादा है और हमें कुछ खास savings नहीं दे रही है labor के point of view से. So in this scenario, the company will definitely choose machine A. Okay, क्योंकि उसकी net saving 670 है. So जब भी आपके पास ना दो टाइप के decisions आते हैं, I think you have done it computer application also, mutually exclusive and accept reject situations. So जब accept reject situations आती है ना, तो हम individually point of view देखते हैं. इसमें net savings are greater than or equals to 0, so we should accept that machine A should be purchased. Machine B, since it is less than 0, so we should not purchase this machine. Mutually exclusive में you have to select only one out from all the alternatives.
उसमें आप वो चूज करोगे जो मैक्सिमम पॉजिटिव एनपीवी दे रही है, दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू जो मैक्सिमम पॉजिटिव दे रही है, यू विल चूज दैट। सो इतना डिटेल में आपके बिजनेस मैथमेटिक्स में नहीं है, बट आपने ये, सिंस यू हैव डन इट कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप लोगों के लिए इजी है ये समझना, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर जब फाइनेंस पढ़ोगे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पे यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल, that what is accept reject situations, what are mutually exclusive, what all are the different types, techniques are available in order to evaluate your capital budgeting decisions. So अभी बहुत सिंपल सा था आपके बिजनेस मैथमेटिक्स में। Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Now we move to the next or last part, which is very, very important. And this last part is about amortization of loans. Okay. So whenever a person takes a loan, they have to amortize it. Amortize means they have to pay it back in equal payments. Okay. And these payments, they include the interest and they also include some portion of the principal amount, right? ये आप लोगों को पता है कि जब हम लोन लेते हैं तो हमें उसको पे बैक करना पड़ता है, और पे में इंटरेस्ट भी होता है और थोड़ा सा प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है। So let's understand this with the help of example. Suppose a bank lends rupees 5,000 to Mr. A. This amount plus interest is to be repaid by equal payments of rupees R. Okay, so basically we have to calculate R, हमारा क्या एन्युटी होगा डिस्चार्ज करने के लिए at the end of each month for 3 months. ठीक है, सो आपका मंथली पीरियड है जिसमें 3 months है, तो n is 3. Okay, furthermore the bank charges interest at the rate of 12% per annum. So this is per annum, so per month it will be 1%. Okay, since the payments constitute an annuity, we can directly use the formula in order to calculate the annuity. So हमने simple formula use किया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, present value equals to R into PVAF tables use कर रहे थे with interest and number of years. Now simply we are actually calculating the annuity. So हम अब क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को या फिर प्रिंसिपल को हम डिवाइड कर देंगे विद पीवीएएफ, विद नंबर ऑफ इयर्स एंड विद द इंटरेस्ट रेट। तो यही हुआ है यहाँ पे, 5,000 को डिवाइड किया है, आप देख लो 1% फॉर 3 इयर्स, सो 1% फॉर 3 इयर्स इट इज 2.9410। ठीक है, सब काफी बार 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, कभी 5 लेते हैं, सो दिस इज सेम। सो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मिस्टर ए को डिस्चार्ज करना है ये पर्टिकुलर लोन, तो वो कैसे डिस्चार्ज कर सकता है। वो 3 महीने में पेमेंट देगा 1711 की, सो 1700.11 इंटू 3, सो वो टोटल पेमेंट कर रहा है 5,100.33, और एक्चुअल में उसका प्रिंसिपल कितना था, 5,000। So in total he has paid the interest of rupees 100.33. हमने क्या किया है, बेसिकली हमने जो नंबर ऑफ पीरियड्स था उसको मल्टीप्लाई किया एन्युटी से, और उसके बाद प्रिंसिपल उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया, जिससे हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। हमें ये पता है कि मिस्टर ए ने इतना टोटल इंटरेस्ट भी पे करा इसको डिस्चार्ज करने में। ठीक है, सो इन योर बुक्स they have made a proper table in which they have actually calculate for 3 periods, like initially it was 5,000, then he had paid an interest of 1%, then annuity 1700 है, इसमें से कितना इंटरेस्ट गया, कितना इसमें बचा। तो एक प्रॉपर टेबल है which is not difficult, वो आप पढ़ सकते हो। I am focusing on the formulas. ओके, सो बेसिकली आपके अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स में डायरेक्ट काफी बार ना क्वेश्चन आ जाता है। कैसे क्वेश्चन आ जाता है, हम एक एक स्टेप करके रिवाइज करते हैं। पहले पीरियोडिक पेमेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, कि एन्युटी को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पी बाय दिस ए, जो एन्युटी ये एन्युटी फैक्टर है, दिस इज नथिंग, दीज आर पीवीएएफ टेबल्स ओनली। ठीक है, सो हमने प्रिंसिपल को पीवीएएफ टेबल की वैल्यू से डिवाइड किया, हमारी एन्युटी आ गई। एंड इसको ध्यान देना, ये ना एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी है। अगर यहीं पे बिगनिंग वाली आ जाती ना एट द बिगनिंग, तो इसका मतलब एन्युटी ड्यू वाला फॉर्मूला लगता।
ठीक है, एनविटी ड्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे n+1 हो जाता नीचे, n+1 i, और फिर एक -1 भी हो जाता। सो वो आप हर क्वेश्चन में यू हैव टू डिटरमिन, ठीक है, कि कौन सा एप्लीकेबल होगा, ऑर्डिनरी एप्लीकेबल होगा या एनविटी ड्यू एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपके पीरियोडिक पेमेंट्स है जिसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने बस रिवर्स कर दिया फॉर्मूला। काफी बार क्वेश्चन में आ जाता है कि ये बताओ प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द kth पीरियड। ओके, सो कोई भी फॉर एग्जांपल 10 इयर्स का लोन था, ठीक है, 10 इयर्स का लोन था, और वो ये कह रहा है कि 4th ईयर के बिगिनिंग में कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंड करता है, कितना प्रिंसिपल बचता है 4th ईयर के बिगिनिंग में। तो उसके लिए यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। सो सपोज 10 इयर्स थे टोटल, तो बिगनिंग में आप यहाँ पे अभी टेबल देख रहे हो कि आप टेबल में ये नंबर ऑफ n कैसे निकालोगे। तो जैसे 10 था, 10 में से आपके k क्या है, 4 पीरियड्स, तो 10 minus 4 is 6 plus 1. Now see why this plus 1 has been done here. This plus 1 has been done because it is saying that outstanding at the beginning. Okay, so whenever there is a beginning thing, हमेशा n में +1 तो होता ही है। जो भी आपके एन्युटी ड्यू के फॉर्मूलाज भी है ना, उसमें हमेशा देखना +1 होता है, क्योंकि बिगनिंग है ना, तो वो साल भी ऐड होगा आपका, वो आपका वो साल नहीं जाएगा, क्योंकि वो साल आपका अभी हुआ नहीं है, वो बिगनिंग का पूछ रहा है, तो अभी मतलब वो भी इंक्लूसिव है, तो इसलिए +1 आ जाता है। यहीं पे आ जाता है ना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द kth पीरियड, वहां पे +1 नहीं आता, खाली n-k आ जाता। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। सो डायरेक्टली अगर आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि आप ये बताओ प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ से 4th पीरियड, यू विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। जो भी आपका आर है आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे विद PVAF। इससे क्या होगा, बेसिकली हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं ना, जो भी हमारे रिमेनिंग पीरियड्स बचते हैं करने की, वो हम वहां तक कैलकुलेट कर देंगे 3rd के ईयर एंड या फिर 4th के बिगनिंग तक। सो वो हमारा आ जाएगा कि अब हमारा इतना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, और उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इंटरेस्ट से ही वी आर फैक्टरिंग इट डाउन। गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए जो भी हम फैक्टर डाउन कर रहे हैं, जो भी डिस्काउंट कर रहे हैं, हमें एक्चुअल में प्रिंसिपल अमाउंट ही मिल रहा है, हमें इंटरेस्ट मिला के नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो बिगिनिंग है इसलिए वी हैव एडेड 1, otherwise it would have been just n minus k. N is your total number of years, k is the period at which you are calculating. ठीक है, सो अगर ऐसा होता है ना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 4th पीरियड, so it would have been just 10 minus 4, that is 6. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट इन द kth। सो इंटरेस्ट इन द kth पेमेंट में जो भी आपका प्रिंसिपल है, ये सेम है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इंटरेस्ट रेट से, जिससे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा कि जो भी kth पेमेंट होगी उसमें इतना इंटरेस्ट है। तो अगर ऐसा है ना इंटरेस्ट इन 4th पेमेंट, तो जो भी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था उसको बस आप मल्टीप्लाई कर दोगे विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। देन sometimes the question says that principal contained in kth payment। ठीक है, सो उसके लिए जो भी kth पेमेंट है, जो भी 4th पेमेंट हुई होगी, उसमें कितना प्रिंसिपल है, वो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका आर है, जो टोटल आपकी एन्युटी पेमेंट है, उसमें से आप माइनस करोगे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इनटू आई। बेसिकली आप उस आर में से इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे। जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये फॉर्मूला खुद से बन जाएंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको दिखा रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, बट अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उससे और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली जो भी हमारी टोटल एन्युटी पेमेंट है उसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, जिससे हमारा प्रिंसिपल, क्योंकि एन्युटी में देयर आर ऑलवेज 2 कंपोनेंट्स, इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल। ठीक है, सो अगर खाली इंटरेस्ट को निकालना है तो आप उस पर्टिकुलर पेमेंट में से इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सॉरी प्रिंसिपल आ जाएगा आपका। और अगर आपको टोटल इंटरेस्ट पेड निकालना है, तो हमने अभी जो फॉर्मूला यूज किया था ना 100.33 हमारा आ रहा था, वही है कि जो नंबर ऑफ पीरियड्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो विद एन्युटी और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो द होल प्रिंसिपल लोन अमाउंट, तो यू विल गेट टू नो कि आपने टोटल में इंटरेस्ट कितना पे किया। ठीक है, इज दिस क्लियर? शुड वी मूव टू द क्वेश्चंस? क्लियर है? क्लियर तो क्या है, अभी खाली फॉर्मूलाज ही देखे आपने, तो अभी इनको सॉल्व करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, सपोज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, अ लोन ऑफ ₹30,000 एट द रेट ऑफ, अभी ना ये सारे क्वेश्चंस जेके ठुकराल सर की बुक से हैं, ठीक है, सो अभी ओपन मत करना, अगर किसी के पास बुक है एक बार ट्राई करो समझने का, फिर खोल लेना बुक, ठीक है। A loan of ₹30,000 at the rate of 6% compounded annually is to be amortized by equal payments at the end of each year for 5 years. Find the periodic payments. अब इसमें ना at the beginning word नहीं है कहीं पे भी, so अब मैं इसको ordinary annuity के accordingly calculate करूंगी, ठीक है। Okay, so this is the principal amount 30,000. Okay, rate of interest is annual, so it is 6%. N is 5 years. So first is we have to calculate what? The periodic payments, or also known as the size of each annual payment. So this is basically talking about the annuity. Okay, so periodically हमें कितनी payment करनी है? So इसका formula क्या है? Principal divide by PVAF with 6% interest and 5 years. सिंपल है, प्रिंसिपल को डिवाइड कर दो पीवीएफ से, सो 6% फॉर 5 years 4.2123 4.2124. okay, so it is 30,000 divided by this, so 7,121.831. this is the size of annuity, this is the size of periodic payment. Next question, principal outstanding at the beginning of fourth period. So now it is asking about the beginning. Okay, so beginning of fourth period, उसमें आपका n क्या हो जाएगा, जो आप पीवीएफ टेबल के लिए n यूज करोगे, it will be the actual number of years 5 minus, now this is fourth period, so this is basically the kth period, so minus 4 plus 1. Why plus 1? Because this is at the beginning. If it would have been at the end, plus 1 नहीं होगा. समझ के देखो, ठीक है, बिगनिंग में पूछ रहा है तो अभी 2 साल रहते हैं मेरे, बिगनिंग का फोर्थ पीरियड पूरा और पूरा फिफ्थ पीरियड, तो मेरा एन ना 2 years का रहता है अभी. अगर यही एट द एंड ऑफ फोर्थ पीरियड होता तो मेरा सिर्फ 1 साल बचता 5 फिफ्थ पीरियड, सो उसमें 1 आता, अभी यहाँ पे 2 आ रहा है, ये 2 आ गया, आर मुझे पता है मेरा कितना है 6%, मैं सिंपल फिर से पीवीएफ निकाल सकती हूँ, पीवीएफ वैल्यू फॉर 6% एंड 2 years, देखो क्या है वैल्यू इसकी, 6% फॉर 2 years 1.8334, so this is the value, ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग at the beginning of fourth period will be what? The annuity payments 7121. These are the annuity payments. These are the R. Multiply by PVAF of this. So 13,057 rupees 0.16 paisa. This is your principal outstanding. Is it clear? बेटा जहां पे भी डाउट हो प्लीज इंटरप्ट मी, बिकॉज दिस इज ना इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसे आ जाते हैं एनविटीज के भी आ जाते हैं क्वेश्चन जिसमें पांचों की पांचों एनविटीज एक साथ होती है, और लोन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इन फोर्थ पीरियड. ठीक है, अब मुझे फोर्थ पीरियड का पेमेंट का प्रिंसिपल पता है कि उसका प्रिंसिपल इतना है, और इंटरेस्ट कैसे लगता है प्रिंसिपल पे, कैसे बनती है आपकी लोन शीट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पीरियोडिक पेमेंट्स, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड.
फिर वो बनता है प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग, फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, फिर लेकिन पीरियोडिक पेमेंट सेम रहती है, फिर आपका बनता है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ऐसी बनती है ना लोन शीट्स जो एक्सेल में बनती है। सो ये जब मुझे पता है कि मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ पीरियड इतना है, तो मैं तो सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी इंटरेस्ट। तो मतलब 783.43 रुपीज का मेरा इंटरेस्ट है। जब मुझे पता है मेरा बिगनिंग में इतना है, तो मेरा इंटरेस्ट कितना होगा फिर फोर्थ पीरियड में, मेरा इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी प्रिंसिपल से। आप समझ पा रहे हो? यस मैम। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन द फोर्थ पेमेंट। ओके, कि फोर्थ पेमेंट में आपका कितना प्रिंसिपल आएगा। सो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एक सेकेंड, प्रिंसिपल, एन्युटी माइनस इंटरेस्ट। सॉरी क्या बोल रहे हो? एन्युटी माइनस इंटरेस्ट। Yes. So it will be principal in the fourth payment. So हमें पता है एन्युटी तो हमारी देखो हर साल सेम रहती है। अगर उस एन्युटी में से हमें इंटरेस्ट पता चल गया तो हमारा प्रिंसिपल तो आ ही गया। तो जो मेरी एन्युटी थी उसमें से अगर मैंने अपना इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ना देखो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ फोर्थ के बारे में ही बात हो रही है, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, तो मुझे और कुछ अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल अपने प्रिंसिपल को कैसे निकाला, एन्युटी में से उस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी इंटरेस्ट था मैंने उसको सब्ट्रैक्ट करा, मेरा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है। द लास्ट पार्ट इज अबाउट मैम सर आप ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिखाना। इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। ये हमें पता है कि जब फोर्थ पीरियड के बिगिनिंग में मेरी ये प्रिंसिपल है, तो इस प्रिंसिपल पे मैंने डायरेक्ट इंटरेस्ट लगा दिया 6%। अच्छा ओके ओके। ऐसे बनता है ना आपका। एक बार अपनी लोन शीट देखना, आप बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूलाज लगते हैं, मतलब एन्युटी कॉलम बिल्कुल सेम रहता है, आपका जो प्रिंसिपल एट द बिगनिंग एट द एंड है वो चेंज होता रहता है, और उसके ऊपर एट द बिगनिंग वाले पे हमेशा इंटरेस्ट रेट लगता रहता है ना। यस। तो बिगनिंग है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट है हमारे पास, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तभी मैं कह रही थी कि फॉर्मूलाज को इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझोगे ना तो आप खुद ही निकाल लोगे क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है टोटल इंटरेस्ट पेड। टोटल इंटरेस्ट पेड कैसे पता चलेगा? एन्युटी इनटू 5 माइनस प्रिंसिपल। Yes, very good. So it is the annuity amount multiplied by the number of periods. So it is 5 minus the principal. So principal was 30,000, right? So it was 30,000. So आपका आ गया 5,609.154. So means ये आपने टोटल पूरे 5 साल में आपने इतना इंटरेस्ट पे करा है। ठीक है। और आप ना इन सारे आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हो, आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं डायरेक्टली kth पीरियड के निकालने के, कि एट द बिगनिंग में कौन सा लगेगा, एट द एंड में कौन सा लगेगा, इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है। सो जब भी आपका पेपर होगा यू कैन ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर्स यूजिंग द एक्सेल फॉर्मूलाज। Should I move to next question now? यस मैम। So next question is Mr. X borrowed rupees है, of गलत है, borrowed rupees 10 lakh from the bank to purchase a house and decide to repay by monthly equal installment in 10 years. ठीक है, so हमारा frequency अब monthly है। The bank charges interest at the rate of 9% compounded monthly, and the bank calculated EMI as rupees this. So we have also got the annuity. Find out the principal and the interest paid in first year and second year, and we also have been given the values of these. Okay, so let's first write what all information is given. Okay, so principal is given 10 lakhs. Okay, n, so n है हमारा 10 years, so लेकिन है कितना monthly, so it will be 10 into 12. So total number of periods are 120.
उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, दिस इज 9% कंपाउंडेड मंथली, so it will be 9 divided by 12, so it will be 0.75% per month. Then annuity is also given, so annuity is 12,668 rupees. Okay, these all informations are given. Now find the principal and interest paid in the first year. So this is about first year. फर्स्ट ईयर में आपका प्रिंसिपल कितना पे हुआ है? सो प्रिंसिपल पेड इन द फर्स्ट पीरियड. सो बेसिकली इसमें आपका एन कितना बचा? 120 माइनस 12, 108 बचा. आपने अभी तक 12 पेमेंट कर दी है, राइट? तभी तो आपने अभी आप निकाल रहे हो कि आपने कितना प्रिंसिपल पे किया है फर्स्ट ईयर में. तो सबसे पहले मैं निकालूंगी कि मेरा कितना बचता है, मेरा आउटस्टैंडिंग कितना बचता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड. तभी फिर मैं क्या करूंगी, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगी प्रिंसिपल से, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पेड कितना है. सो सबसे पहले मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रही हूँ कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर मेरा प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है. सो वो आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए मतलब मैंने 12 पेमेंट्स कर दी है, राइट? मंथली है. So first I'll calculate principal outstanding at the end of year. ठीक है? So इसके लिए I'm using the formula annuity, that is 12,668 multiply with PVAF, and the rate of interest will remain same. It is 0.75% and the number of payments is 108. In the given information, okay, so you have been given these values. So tell me which particular value you will opt for this particular thing. कौन सी value आएगी? कौन सी चूज करोगे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है, इसमें टेबल्स में सेकंड वाला कौन सी वाला? 0.44 सेकंड वाला 0.446263. ओके, और किसी को कुछ बताना है या यही यूज करेंगे हम? मैम ये लास्ट में ए वाला है, ये 73.83 वाला. यस बेटा, हमेशा ये वाला यूज करना, क्योंकि आप याद करोगे ना जब आपके फॉर्मूलाज आते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में होते हैं, इनमें कभी +1 लगता है, कभी 1 माइनस होता है आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी. और जब आप वो निकालते हो ना फॉर्मूलाज, तो हमेशा ये इसकी वैल्यू गिवन है, बट जो उसका डिनोमिनेटर होता है ना 1 प्लस, किसी में अंदर कुछ होता है, किसी में बाहर कुछ होता है, वो पूरा कंप्लीट नहीं गिवन. सो हमेशा एन्युटी फैक्टर टेबल की वैल्यू को कंसिडर करना, इनकी नहीं. इनको हमेशा इग्नोर करना. इनको आप तब यूज करोगे व्हेन यू नो द फॉर्मूला. आई विल शो यू द फॉर्मूला. ठीक है, कैसे होता है? मैं ऑर्डिनरी एन्युटी का दिखाती हूँ आपको. ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं इनके. ये फ्यूचर वैल्यू है, आपको प्रेजेंट वैल्यू का दिखाऊं मैं ऐसे. तो आपको तो खाली ये वैल्यू गिवन है 1 + i⁻⁻n. ये कौन, ये खुद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी या तो हमेशा डायरेक्ट एन्युटी की लिया करो वैल्यूज. कभी भी ना ये वाली वैल्यूज मत ऑप्ट करना. ठीक है, सो वी हैव दिस 73.83916. So this is the principal outstanding at the end of first period. Okay, so how much principal I have paid during the year? During first year, so it will be the total principal, that is 10 lakh minus outstanding. So इसका मतलब मैंने पूरे साल में 64,605.52 प्रिंसिपल पे कर दिया है. क्लियर? Yes ma'am. Next comes the interest paid during the year.
राइट, ये फर्स्ट ईयर की बात चल रही है ना. सो इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. सो इसमें मुझे पता है मैंने टोटल एन्युटी कितनी पे करी है, 12,668 इंटू 12 टाइम्स. ये मैंने एन्युटी टोटल पूरे साल में पे करी है, और मुझे ये भी पता है कि मैंने प्रिंसिपल पूरे साल में इतना पे करा है. तो मेरा बैलेंसिंग फिगर विल बी दी इंटरेस्ट, राइट, क्योंकि Yes. मैंने टोटल एन्युटी 12 महीने इतनी पे करी है और मैंने अपना प्रिंसिपल पेड निकाल लिया. सो बचा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, सारा का सारा मेरा इंटरेस्ट. सो मेरा इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर भी आ गया. ठीक है, नाउ वील सिमिलरली कैलकुलेट फॉर द नेक्स्ट पीरियड. ठीक है, फॉर द सेकेंड पीरियड. मैम एक बार ये वाला पॉइंट फिर से बताना, कौन सा वाला, इंटरेस्ट वाला मैम. इंटरेस्ट वाला? देखो, आप ना अभी सब भूल जाओ, एक सेकेंड रुको. आप बस ये देखो अभी तक हमने इंफॉर्मेशन क्या निकाली है. हमने इंफॉर्मेशन अभी तक ये निकाल ली है कि पूरे 10 साल में एक साल के बाद मेरा इतना आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है और इतना मैं पे कर चुकी हूँ प्रिंसिपल. ठीक है, अभी मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ. अब मुझे निकालना Yes. है इंटरेस्ट. अब मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूंगी, मुझे पता है ये जो एन्युटी पेमेंट्स है ना, जो हर महीने जा रही है, इसमें प्रिंसिपल भी है, इसमें इंटरेस्ट भी है, दोनों चीजें हैं. तो मैं अगर टोटल पूरे साल मैंने कितनी एन्युटी अमाउंट पे कर दिया पूरे साल इंटू 12 करके, मैं अब तक पूरे साल 1,52,016 रुपीज पे कर चुकी हूँ बैंक को. इसमें Yes. से मुझे पता है कि मेरा इतना प्रिंसिपल था पेड ड्यूरिंग द ईयर, मेरा इतना प्रिंसिपल था, तो इसका मतलब मेरा बचा हुआ क्या कंपोनेंट था पूरे साल, Interest. इंटरेस्ट. ठीक है, Yes. सो ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली है. ठीक है, Okay. ये पेड कैसे निकाला था मैंने, मैंने अपने प्रिंसिपल में से आउटस्टैंडिंग, जो मेरा टोटल बिगनिंग में जो इनिशियल प्रिंसिपल था उसमें से मैंने आउटस्टैंडिंग सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे मेरा पेड ड्यूरिंग द ईयर आ गया. Yes. Now the next one is about the second period. So second period में अब मेरे नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी बचती हैं, 12 माइनस 12, 2 साल की हो गई, 96. तो Yes 120, ma'am. yes, 120 minus 24, so it is 96. Now principal outstanding at the end of second period. Okay, so at the end of second period it will be, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 96. Rate of interest will remain the same, so it will be 12,668 multiply with 68.258253. ठीक है, ये मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया वैल्यू यहाँ से, एंटर. So now I know that principal outstanding at the end of second period is this. Now I have to calculate how much principal paid during the second year. So ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, ये मैं कैलकुलेट करूंगी जो मेरा टोटल एक्चुअल में इनिशियल प्रिंसिपल था 10 लाख माइनस जो मैंने फर्स्ट पीरियड में प्रिंसिपल पे कर दिया. सो फर्स्ट पीरियड में मैंने प्रिंसिपल कितना पे किया था, 64,605.52 माइनस अब मेरा कितना आउटस्टैंडिंग रहता है एट द एंड ऑफ 2 इयर्स. सो मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो मैंने पे कर दिया है सेकेंड ईयर में, मतलब मैंने फर्स्ट का पूरा एलिमिनेट कर दिया प्रिंसिपल, क्योंकि ये सिर्फ ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा है कि दोनों साल में कितना कर दिया, वो ये पूछ रहा है सिर्फ सेकेंड ईयर में कितना किया है. तो मैंने फर्स्ट ईयर का टोटली सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो आउटस्टैंडिंग है वो टोटल सब्ट्रैक्ट कर दिया जो सेकेंड ईयर से पहले जितना जितना आउटस्टैंडिंग, सेकेंड ईयर के बाद में जो जितना भी आउटस्टैंडिंग था, और उसको मैंने 10 लाख से सब्ट्रैक्ट कर दिया. So means 70,699 approximately the principal which is paid during the second year. ये principal paid during the second year. Clear है इतना? Yes ma'am. Then the last one, interest paid during second year. ये कौन बताएगा मुझे क्या होगा इसका? Ma'am, 8,64,695 minus
7 lakh opening balance. पहले समझ के देखो ये वैल्यू क्या है. दिस इज आउटस्टैंडिंग. मुझे इंटरेस्ट पेड निकालना है, वो भी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर. कैसे निकालूंगी मैं? मैम 935 394 minus 864. प्रिंसिपल आउट, क्या कह रहे हो? दिस Yes, माइनस दिस. yes, 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 ma'am. ये तो प्रिंसिपल का आउटस्टैंडिंग डिफरेंस निकाल दोगे आप. इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ये तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बता रही हो. प्रिंसिपल में तो वैसे इंटरेस्ट नहीं है. Ma'am, annuity multiplied by 12 minus principal paid during the year. वेरी गुड. सो दिस इज बेसिकली हमने पूरे साल सेकेंड ईयर में कितनी पेमेंट करी और उसमें से प्रिंसिपल कितना था. ये तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में निकाला था. तो हमारी कितनी एन्युटी हमने पूरे साल में पे करी है? 12,668 इंटू 12, मतलब मैंने टोटल सेकेंड ईयर में अब इतनी पेमेंट करी है और जिसमें से प्रिंसिपल मैंने निकाल ही लिया अपना. प्रिंसिपल क्या है मेरा? 70,699. तो बचा हुआ इज माय इंटरेस्ट. हर क्वेश्चन को बेटा एनालाइज करके देखो कि आपको क्या निकालना है. ठीक है, अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है बट आप एक बार ही समझ लोगे ना तो ये कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन बहुत आसान है. आपको इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर निकालना है. ड्यूरिंग द ईयर आपके पास प्रिंसिपल आपने पहले स्टेप पे निकाल लिया है. तो आपके पास कैसे निकालोगे? आप अपनी टोटल एन्युटीज में से पूरे साल की प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा. राइट? ठीक है, बाकी Yes, अभी 2 क्वेश्चंस और कराऊंगी, उसके बाद ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको. इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. Question 3. A couple wishes to purchase a house for rupees 10 lakhs with a down payment of rupees 2 lakhs. If they can amortize the balance at 9% per annum compounded monthly for 25 years, what is their monthly payment? What is the total interest paid? And what is their equity after 5 years? क्या क्या information given है? Principal given है 10 lakhs. Number of years 25 और frequency क्या है? Monthly. So it is 25 into 12. Total 300. Rate of interest 9% per annum. So similarly 9 divided by 12. So it is 0.75% is the effective one. So principal नहीं sorry क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. हाउस खरीदा 10 लाख का है लेकिन डाउन पेमेंट कर चुका है वो 2 लाख. तो डाउन पेमेंट कर दी तो लोन कितना लिया होगा उसने? 8 लाख का. जब डाउन पेमेंट कर दी तो 10 लाख का थोड़ी लोन लेगा वो. राइट? वो सिर्फ 8 लाख का लोन लेगा. हमारे पास एन है, हमारे पास आर है. सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज देयर मंथली पेमेंट. So monthly payment के लिए we know how to use the formula. So annuity we are calculating. So this is principal divided by PVAF, जिसमें हमारा rate of interest है 0.75 and number of years है 300. And this particular value is already given in the question. ठीक है, so it will be 8 lakhs divided by this we have to choose. Right, so it is 119.1616. So 6,713.57. So this is basically the total annuity. This is the annuity which he has to pay every month. Next question, total interest paid. So इसका भी हमें पता है कि टोटल इंटरेस्ट मतलब टोटल कितनी एन्युटी पेमेंट करके कितना टोटल पैसा हमने बैंक को दिया है और एक्चुअल में हमने लोन कितना लिया था. सो दिस इज दिस मल्टीप्लाई बाय 300 माइनस 8 lakhs जो हमारा इनिशियल हमने लोन दिया था. तो 1 lakh sorry it's 12,14,072 rupees is the total interest paid.
Third question is, what is their equity after 5 years? So equity after 5 years वो क्या है? Basically this is whatever the down payment you have made plus the amount that you have paid on loan. This is your equity. Total actual में whatever the principal amount that you have paid on the loan plus the down payment. ठीक है, सो हम कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर 5 years. ठीक है, सो इक्विटी आफ्टर 5 years. सो हमें एक टर्म दिया हुआ है कि 5 साल के बाद कितनी है. तो सबसे पहले 5 साल के बाद मतलब मेरे को सबसे पहले अपना एन निकालना पड़ेगा. मेरा रिमेनिंग एन कितना है? सो रिमेनिंग एन के लिए जो मेरा पुराना एन था उसमें से मैं माइनस कर दूंगी 5 into 12. ठीक है, हर साल में 12 पेमेंट्स थी, टोटल 5 साल की बात कर रहे हैं. सो 5 into 12, so basically 240 is the remaining amount. Now I'll calculate what is the principal which is outstanding. Okay, so principal outstanding at the end of 5 years. तो अगर मैं प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 5 years निकालूंगी, सो उसका फॉर्मूला क्या होता है? आर क्या है अपना? एन्युटी मल्टीप्लाई विथ PVAF of now 0.75% with 240. This is basically this multiply by this value is also given 111.1449. So total आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो है 7,46,179.3. So amount paid on loan कैसे निकल जाएगा? Paid on loan, this is basically the total minus the outstanding. इतना मैं पे कर चुकी हूँ. So जो भी आपका प्रिंसिपल है माइनस आउटस्टैंडिंग, so 53,820.69. इसका मतलब आप 5 साल में इतना पे कर चुके हो अमाउंट लोन का. सो आपकी टोटल इक्विटी कितनी हुई? जो आपने पे कर दिया ऑलरेडी डाउन पेमेंट पे विच इज 2 lakhs प्लस जो आपने लोन पे अमाउंट पे कर दिया. सो टोटल आपकी इक्विटी हो गई 2,53,820.7. मैम अमाउंट पेड ऑन लोन आपने कैसे निकाला है? अमाउंट पेड ऑन लोन देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाला है? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग. प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मतलब 5 साल के बाद मेरा इतना प्रिंसिपल बचता है. ठीक है, इतना प्रिंसिपल अमाउंट रहता है. तो इसका मतलब इससे जो पहले वाला है वो मैंने पे कर दिया, ये आउटस्टैंडिंग है ना. इससे पहले जितना भी था वो मैं पे कर चुकी हूँ, वो इतना पे कर चुकी. कैसे निकलेगा? टोटल मेरा कितना था लोन? 8 लाख रुपीज. 8 लाख में से मैंने इस आउटस्टैंडिंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट पेड ऑन लोन आ गया. ओके. तो टोटल मेरी इक्विटी कितनी हुई? डाउन पेमेंट और जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन में पे कर दिया वो. तो ये मेरी टोटल इक्विटी इन हैंड है. मतलब इतना मेरा अभी तक उस पर्टिकुलर घर पे मैं इतना अभी तक ओन कर चुकी हूँ. Yes. Now we'll move to the last question. Mr. S took a housing loan of rupees 8 lakhs to be paid in 10 years by equal monthly installments. The interest charge is 10.5% compounded monthly. Find her monthly payments. After 2 years, the bank revised the interest rate to 12% compounded monthly. Find the new EMI if the loan is to be cleared by the stipulated time. ठीक है, बहुत आसान है ये. सॉरी, दोबारा डिलीवरीज करना पड़ेगा. ठीक है, सो लोन लिया है प्रिंसिपल
8 lakhs का। n कितना है 10 into 12 120। इंटरेस्ट कितना है 10.5 divide by 12, so it is 0.875%। सबसे पहले बोल रहा है फाइंड हर मंथली पेमेंट, सो मंथली पेमेंट्स मतलब एन्युटी निकालनी है, सो इट इज प्रिंसिपल डिवाइड बाय PVAF ऑफ 0.875% with 120 periods. Now see what is the information given. It is 8 lakh divide by 120 दी हुई है यहीं पे 120 years and 0.00875 या फिर 0.875%. So it is 74.109531. So it is 10,795. So this is the periodic payment. Now the question says that after the end of 2 years, the bank has now changed the interest rate. और इंटरेस्ट रेट कितना चेंज करा है उसने 10.5 से 12% कर लिया। यहीं पे करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि अब उसकी न्यू EMI क्या होगी। सो उसके लिए क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचो कि आफ्टर द एंड ऑफ 2 years उसने चेंज किया है, तो मैं प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग निकाल लूं आफ्टर द एंड ऑफ 2 years सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। नॉर्मल मैंने निकाला प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2 years, दिस विल बी व्हाट आर, जो भी आपका आर आया है, मल्टीप्लाई विथ PVAF and quickly tell me the remaining one will be 120 minus 24, 2 years के बाद निकाल रहे हैं, so it will be 96. Okay, so this will be, tell me the value of PVAF. It is 64.766548. So now you know that this is the principal outstanding at the end of 2 years. अब वो क्या कह रहा है कि न्यू EMI निकालो। न्यू EMI निकालना मतलब अब मेरा प्रिंसिपल चेंज हो गया 8 लाख से ये, क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ 2 years की वैल्यू मेरे को मिल गई है, क्या मेरा ये स्टार्टिंग का बैलेंस है। सो दिस will be divided with what, with 96, क्योंकि period is same, it is going to be 120 only, the time they have said that within the stipulated period, so it is same. So PVAF 96 will remain the same, and the interest, it is 12% compounded monthly, so it is 12% divided by 12, so it is 1% now. So आपकी value applicable will be this now, 96 period with 1% rate of interest. So 61.52766. So this is your new EMI, 11,363.1. Easy है? Yes. किसी को कोई भी डाउट है इन 4 क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कंसेप्ट समझना है, प्रिंसिपल एट द बिगनिंग, इंटरेस्ट, एन्युटी एंड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आप एक बार ये अपनी कंप्यूटर एप्लीकेशन में लोन शीट को भी खोलकर देखना है इसको रेफरेंस करने के लिए, उसी कंसेप्ट पे सारे बिजनेस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। Just give me 2 minutes, okay? I'm just coming back. Give me 2 minutes.